Now the second part is dilution. Write down the heading dilution. Dilution. ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है जब कभी भी डाइल्यूशन करते हैं। अच्छा, सबको शरबत पता है ना क्या होता है? मैं ऑलवेज टेक एग्जांपल ऑफ दिस एंड यू गाइस डू नॉट नो हिंदी दैट वेल, सो यू माइट नॉट नो व्हाट द शरबत इज। इट्स अ स्वीट प्लस, इट्स अ शुगर प्लस वाटर। ओके, तो सपोज कर लेते हैं आपने शरबत बनाया घर पे, ठीक है, इट्स अ शुगर प्लस वाटर, दैट्स इट, एंड यू कैन ऐड लेमन एंड ऑल दैट एज वेल। तो शुगर प्लस वाटर मिलाया आपने, क्या किया यहाँ पे, 2 स्पून ऑफ शुगर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे वाटर डाल दिया। फिर आपका दोस्त आ गया, आपके घर में शक्कर खत्म हो गई थी, ठीक है, शुगर आपके घर में खत्म हो गई थी, तो आपने पानी मिला दिया इसमें। तो टेल मी, by addition of water, does it change the amount of sugar in the solution or does it remain same? It remains same. It It remains remains same. same. So the whole theory of dilution is, all you have to do is remember this thing, that on the dilution, write down, on dilution, on dilution, the amount of solute remains same. The amount of solute remains same. ओके, सो अगर हम फॉर्मूले से आते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. So can I say that the number of moles of solute is equal to molarity into volume? So as we told that the number of solute remains same, so can I say the initial solute is equal to final solute? So can I write M1V1 is equal to M2V2? These are the Yes, sir. moles at the beginning. These are the moles at the end. Because the moles of solute remain same, so M1V1 will be equal to M2V2. Is that clear? On dilution, the number of moles of solutes are remain same. And since the formula for the number of moles of solute is M1 into V1, yeah, M into V, so I can say that the solute at the beginning is M1V1 and solute at the end is M2V2. Is that clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now write down the question. ठीक है, what amount, have you written this thing? Because this is a very important thing. Yes, लिख Yes, लिया ये? sir. sir. Okay. Not Write yes, down sir. what amount of water must be added. What amount of water must be added to 2 molar 100 ml 100 ml glucose so that it becomes 1.5 molar. So that it becomes 1.5 molar. Okay. अच्छा, एक चीज ध्यान देना, तो जो लोग मैथ वाले हैं उनको तो दिक्कत नहीं होती, बायो में दिक्कत होती है लोगों को। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने वॉल्यूम आपका लीटर में होता है, बट इधर भी ml में रख दूं मैं वाटर, इधर भी ml में रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा इससे? No, sir. No, नहीं. sir. तो you No, don't need to sir. change when you are applying this formula. You don't need to change volume into liter again and again. Okay, because both sides will have the same unit. The unit will cancel out. So it doesn't matter whether you are putting it in the liter or whether you are putting it in the ml. So in this scenario, you can put the volume in ml. That will be okay. Now take a look at it. What is the value of initial 2? 1, 2. What is the value of initial volume? 100 ml. 1.5. What is the value of M2? 1.5. 5. V2 you have to calculate. Now since you are diluting it because you are adding water in it, so M1 V1 is equal to MTV2. M2 V2. So what will be the answer? 200 is equal to 1.5 into volume. So V2 will become how much? 1.33 point something.
2000 upon 15. Can you solve this one? 5 बचेगा, 15, 133.33. I think so. Is this the answer? Yes, sir. No. 133 with 133 is the final volume. But what was asked in the question? Pay attention to the question always. What was asked in the question? how much water needs to be added? How much water was added? This is the final volume. Matlab, this is the total volume. So what was the amount that was added? 33.33. 33.33 was added, right? This is the final total volume. So the volume that was added will be 133.33 minus 100. So that will be 33.33. This is the amount that was added. Is that clear? Yes, sir. बाकी लोगों को हो गया? समझ में आया ये? Yes. Okay. You do one question. Let's take the same thing. Three molar, 200 ml NaOH. How much water was added? लिख लेना. How much water must be added? How much water must be added so that the final concentration becomes 2 molar? So that the final concentration becomes 2 molar. Mm. 100. 100 ml. Yeah, let's see. 100 M1 ml. V1 is equal to M2 V2. So 3 into 200 is equal to 2 into volume. So it will become volume, final volume will become 300. So how much was added? 100. 100. तो जो ऐड किया होगा वो कितना होगा? 100. 100. Nice. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. एक चीज और होती है, डालना थोड़ा सा टफ होगा तो प्लीज पे अटेंशन. ओके. मिक्सिंग डालना, हेडिंग मिक्सिंग. मिक्सिंग ये थर्ड चैप्टर में, थर्ड नहीं फोर्थ चैप्टर में ज्यादा आता है जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम करते हैं और आपको पीएच निकालना होता है. Then it becomes very important that you understand the mixing when you have to calculate the pH. Otherwise, you won't be able to do the pH. Okay, just to revise, don't look at your notebook. What is the formula for the moles in terms of molarity? Given mass What is the upon formula of Given moles in mass terms of upon molarity? Pardon? Can you repeat again? given mass. Given mass. नहीं बेटा, मास वाला नहीं पूछ रहा. इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी? Molar into 100 into 1 NL. liter of solution. मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? Yeah. वॉल्यूम इन लीटर. ओके, नाउ सेम क्वेश्चन करते हैं शरबत वाला. ठीक है, अब मान लेते हैं आपके पास एक ग्लास था जिसमें 100 ml था और 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर थी. टीबी लिख दे रहा हूं, ठीक है. आपके पास दूसरा था ग्लास जिसमें अगेन 200 ml था, बट जो टेबल स्पून थी 3 टेबल स्पून थी. इन दोनों को आपने मिला दिया. So what will happen when you mix things? What happens? What will become the volume? 300 ml. 300. 300 will be the volume. And how much sugar will be there? 4 tablespoons. 4. 4 tablespoon of sugar will be there.
So that is the basic of mixing. That when you mix two compounds, when you mix the compound, volume is also added and the moles are also added. Is it clear? Yes, sir. This is going to be little bit tough because there is another chapter involved here, as I told you, pH वाला chapter जो होता है. So please pay attention. अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज दोबारा मुझे रिवाइज करने के लिए बोल देना. I'll repeat it happily because अगर ये नहीं आया तो आपको वहां पे भी नहीं आएगा. Although मैं वहां पे दोबारा पढ़ाऊंगा, बट इट्स बेटर की चीजें आप 2 बार 3 बार करें रादर देन एक बार करने के. राइट. तो एक बार मैं भी बता दे रहा हूँ, इस चैप्टर के हिसाब से ये रेलेवेंट नहीं है उतना जितना ये आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से रेलेवेंट है. तो अगर ना समझा तो प्लीज पूछ लेना अगेन. तो फिर जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो और आपका मजबूत हो जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट क्लियर. Yes, sir. मिक्सिंग तो ये होता है. ओके, चलो तो हम आते हैं अभी. तो सपोज कर लेते पहले, बिफोर वी स्टार्ट मिक्सिंग लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग. ओके, तो क्वेश्चन इज, ओके, बिफोर वी डू द मिक्सिंग क्वेश्चन देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन. पहले हम वो करने जा रहे हैं. तो आपको 2 मोलर 100 ml HCl दिया गया है. What is the number of moles of H plus? Tell me. Yeah, number of millimoles of H plus. What are the number of millimoles of H plus? मिलीमोल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वॉल्यूम हमने ml में रखा हुआ है. या मोल ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है. बताइए what are the number of moles of HCl? 200. H plus. Okay, 200 बिल्कुल करेक्ट है. क्योंकि देखो इधर देखो बेटा, तो HCl के कितने मोल हैं ये बताओ. मोल क्या होता है अभी बताया था हमने, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. तो मिलीमोल्स इसके लिख रहा हूं मैं 200 मिलीमोल्स. पहले बताओ ये क्लियर है सबको? प्लीज बोलते रहना. ये क्लियर है? हाँ. Yes, ओके. sir. अब जो HCl होता है वो कितने H प्लस देता है? एक ही H प्लस तो देता है. Yes, sir. Yes, तो sir. अगर ये 200 है तो लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था, अगर ये 200 है तो ये भी कितना होगा? 200. इज इट क्लियर? Yes, sir. राइट इट डाउन. बड़े. Yes, sir. ओके, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे H2SO4. अब बताओ कितना H प्लस होगा? अब कितने H प्लस होंगे? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ H प्लस? 400. 400. सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. नाइस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जो H2SO4 है वो कितना हो गया आपका? 200 मिलीमोल्स. और एक H2SO4 कितना देता है आपको? 2H प्लस देता है. तो अगर ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा? 400. 400. इज दैट क्लियर? Yes, sir. sir. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन. इनको मिक्स किया है. मैं लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिख रहा. आई एम नॉट राइटिंग कि वी मिक्स वन थिंग विद अनदर थिंग. व्हाट इज दिस? तो आपको निकालना क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालनी है. अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम डिब्बा बना के ऐसे लिख देते हैं. वी राइट इट इन द अपर केस ब्रैकेट. वी राइट इट लाइक दिस. So this means you have to figure out the concentration of H plus. Let's see how many of you can do this. Try. You can tell me in the fractions, okay? You don't have to tell me in the decimal. Do this in the fraction. Three, four, five, one, two, three. So what we need to find?
concentration of H plus. That is what we needed to find out the pH, right? No. If you remember from the third chapter, again I told you this is not relevant from this chapter, but since we are learning the concentration, so I'm just going into it a little bit. We'll do 1 or 2 questions, that's it, not more than that. But you need to understand this because in the third chapter we'll have to go through this again. So you have a basic understanding of it. So it will be easier for you in the third chapter or fourth chapter, I think. Okay, let's solve it. So what is the concentration of what is the amount of HCl here? Figure out the number of moles or millimoles. How many millimoles are there? 200 millimoles, right? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर 200 millimoles HCl है तो H plus कितना होगा? If there are 200 millimoles of HCl, how many H plus will be there? 200. 200. 200. Sorry. Correct. Okay. Now here let's solve this one. How many millimoles of HCl is there? 600. 600 millimoles. So if there is 600 millimoles of HCl, how many H plus will be there? 600. 600. 600. Okay, just for the case of supposition, suppose this were to be H2SO4, then how many H plus will be there? 12,000. 400. 1200. Okay, so what is the total millimoles of H plus? Total millimoles of H plus will be 800. 800. And since you have mixed them both, what is the total volume? 300. 300. 300. Both are milli. This is millimoles, this is ml. So you don't need to change anything. So the concentration will be, what is the formula for molarity? Number of Come on. moles of Number of moles upon volume. So 800 upon 300. Sure. So that will be 2.67, I think. Is it clear? yes, Yes, sir. 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 Okay, let's do one more question. Let's see if we can solve this one. Then we'll move towards the next type of question. Again, as I told you, this topic is not important from this chapter perspective. Okay, you won't get many questions from this chapter, but in the ionic equilibrium chapter, you will get a lot of questions like this. So again, the same data. Figure out H plus concentrations. Millimoles. ओके, तो पिछला वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. तो बेटा यहाँ पे आपने मोल्स निकाल लिए HCl के, यहाँ पे आपने HCl के मोल्स निकाल लिए, ठीक है. तो मिलीमोल्स निकाला है आपके, जितने HCl होंगे उतने ही H प्लस के मिलीमोल्स होंगे. तो टोटल H प्लस के मिलीमोल्स आपके कितने हो जाएंगे? 800 मिलीमोल्स. एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया. तो इसका 100 था, इसका 200 था. तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 मिलीमोल्स. और मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. The number of moles were 800, volume was 300. So when you divide that, you get 2.67. Is it clear? Sir. Yes, Sir, sir. 400. Okay. The next question, let's see. Answer is covered. Okay, 400. let's see. 400? Sir, 2.6. नहीं बेटा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, कैलकुलेशन वाइज भी. करिए, बाकी लोग करिए. 2.6 तो नहीं आना चाहिए. 400. 3. 600. Yeah. Sorry. Yeah. Sir, Three. 3. How many of you are getting 3? Raise Yes, your sir. hand. How do me. you do? 3, Okay, sir. nice. How do we Okay. raise the hand? It's okay, I heard it. Okay. So यहाँ पे देखते हैं बेटा, जिन लोगों को नहीं आया प्लीज देखो, बहुत ही आसान है. HCl कितने होंगे? 200 हो जाएंगे. Yes, sir. यहाँ पे H2SO4 कितना होगा? 200 हो 400. जाएगा. Yes, sir. No, sir. H2SO4 बेटा, H2SO4. ना H प्लस कितने होंगे?
every HCl gives 1 H plus, so it will be 200 H plus. Now, every H2SO4 gives how many H plus? 400. 400. 2. So 200 will give 400 because every H2SO4 gives 2 H plus. Now, the total H plus will become 600. 600. So molarity is equal to number of moles, that is 600 upon what is the volume when you mix them together? 200 is 3. Is it clear? Yes, Yes, sir. Okay, I'm giving you one question for homework. This is not, we are not going to do it here. So try it at your home. 2 molar, 100 ml, H2SO4. Let's make it 200 ml. Okay. Plus, it's going to be a little bit tough. Or I'll give you two questions. Okay. Another is 1 molar, 100 ml, NaOH. अच्छा, let's see how many of you can tell me how would you proceed regarding this question? कोई बता सकता है कैसे proceed करेंगे? Not Really? find. 100. आपको टोटल निकालना है, जो भी बचेगा H प्लस OH माइनस जो भी बचेगा वो निकालना है. तो कैसे प्रोसीड करेंगे? होमवर्क है ये, अभी नहीं करना है आपको. बेटा देखिए, आपको ये पता है कि एक H प्लस एक OH माइनस को खत्म कर देता है. पता है ना आपको कि 1 AH प्लस 1 OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देता है. 1 H प्लस इज न्यूट्रलाइज बाई 1 OH माइनस. Is that clear? Yes, Clear. sir. So what you will do, you'll figure out the total number of H plus and you'll figure out the total number of OH OH. minus and then subtract them. So suppose कर लो, समझ लो question. अगर H plus थे 300 and OH minus थे 100, so what will remain and how much of it will remain? I'll repeat again. Suppose you had 300 H plus and 100 OH minus. So what will remain and how much of it will remain? 200, sir. 200 will remain, but what? Of what? Sir. H2. H plus. 200 of H plus will remain. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. But suppose कर लेते हैं, there was something otherwise. Suppose you had 200 H plus but 500 OH minus. So what will remain and how much of it will remain? Minus 300. Yes. Not 300. minus. Okay, just say one person at a time. What will remain and how much of it will remain? 300 OH minus. Yes, will remain. Yes, 300 OH minus will remain. I hope it is clear. So Yes, that is how sir. you will proceed. Another question, write it down for the practice sake. Homework के लिए है. Again, as I told you, this is not very important from this chapter. So if you are facing problem in this topic, it's okay. We'll repeat it in the ionic equilibrium when it is important. Write it down. But before this topic, that is the dilution topic, that should be very clear to you. Mixing is not very important at this level. So these are the two questions that you have to do. Write down the next question or next topic. Relation between molarity and percentage weight by weight. Okay. So molarity is equal to 10 into percentage weight by weight into density of solution in gram per ml. This should always be in gram per ml upon molecular mass of solute. This is the formula that you have to remember. अच्छा, अभी क्लास के बिगिनिंग में याद है जब हमने किया था, हमने कहा था कि परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है. डू यू Yes, रिमेंबर? sir. So Yes, sir. can I write this formula like this as well?
Correct question? Yes, sir. Yes. Write down. Calculate the molarity of 20% acetic acid solution, 20% दिया गया है. Weight by weight, मैं बोलना भूल गया सर. 20% by mass या weight by weight acetic acid solution having density 1.2 gram per ml. Okay, these are the formulas that I have prepared. I mean, there's a long way to do it as well, but since your exam is NEET or J exam is objective based, so you don't have to go through the whole process of solving it. Just remember the formula and it will be helpful to you. You can do it without using the formula as well, but it will take some time and practice. Calculate the molarity बता दिया, करिए. 14 molar. Okay, let's see. So molarity is equal to 10 into percentage weight by weight, that is 20. This is into density 1.2 upon molecular weight of this is 60. Right? This is it. So that will be 24. Right? How did you get the answer? What 14 कैसे आया बेटा? 4 आएगा ना? There is 10. आपकी आवाज कट रही है. 10 is also there, no, sir. At first. Yeah, 10 is also there. I think you did not write the 10, right? आंसर कितना है? 4 बेटा. 4, yeah, 4, yeah. Okay. Now write down another question. Just one more. That's it. Okay. Write down 2 molar H2SO4 having a density 1.4 gram per ml. 2 molar H2SO4 having a density 1.4 gram per ml. Calculate its percentage mass. Calculate its percentage mass. हो गया? So 14. देखते हैं. तो 2 मोलारिटी दिया गया है 10 into percentage weight by weight into 1.4 अपॉन 98 होता है बेटा इसका. तो कितना हो जाएगा? हमारा 14. इससे ये चला गया 14 आएगा. Okay. Yes. Now the next topic is molality. Molality, lower case m. अच्छा, एक चीज लिख लेना, मैं बताना भूल गया. मोलारिटी जो होती है, जो अपर केस एम था, ये जो मोलारिटी होती है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. राइट इट डाउन. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है. मोलारिटी क्या होती है? पहले फॉर्मूला पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आप डेफिनेशन लिख लेना पहले. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg of solvent. In 1 kg of solvent.
सो ये आप पहला केस पढ़ रहे हैं जहां पे आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं। अभी तक आपने सब कुछ जो डिफाइन किया था वो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर डिफाइनिंग इट विद रिस्पेक्ट टू solvent. So mass of solvent in kg, you have to write it down. So this is the formula: moles of solute upon mass of solvent in kg. That is, अगर मान लेते हैं आपसे कहा जाता है 2 मोलर, क्या बोला गया आपको? 2 मोलर। तो 2 मोलर अगर आपसे बोला गया तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल्स ऑफ solute will be there. बेटा 1.5 आर की होती है, ठीक है। तो आपका जो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इज इट क्लियर? Yes, sir. पढ़े? Yes, sir. राइट डाउन क्वेश्चन। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना, जो मोलालिटी होती है, मोलालिटी दैट इज दिस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका एक बेनिफिट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो दिस इज अ बेनिफिट फॉर यू, बिकॉज अगर वेदर चेंज होता है तो मोलालिटी चेंज नहीं होगी, या टेम्परेचर चेंज होता है तो मोलालिटी चेंज नहीं होती, बट मोलालिटी चेंज होती है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जबकि मोलालिटी क्या थी? डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर थी। तो मोलालिटी का ये एक एज मिल जाता है उसे ओवर मोलारिटी। Now, question, write down question. 49 gram H2SO4 is dissolved in 250 gram water. Calculate the molality. लोअर केस एम निकालना है आपको। थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है, इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास से ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह करेंगे और बैलेंसिंग। तो क्या होगा बताइए? 2. मोल निकाल लेते हैं पहले। मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49 अपॉन 98। बहुत बार कर चुके हैं तो अब मैं एक एक स्टेप नहीं लिख रहा। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास इज 250। Yes, sir. 2 आ रहा है। तो 250 अपॉन या 1000, सो दैट विल बी 2। ओके, राइट डाउन। अगर मान लो मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन देता, बट आपको पता होना चाहिए 49 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया गया है आपको, सेम क्वेश्चन है 250 ml ऑफ वाटर। आप बताइए क्या करेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे सर। या आपको वाटर की डेंसिटी अगर पता हो तो डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो सब कुछ सेम हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो जो मास ऑफ वाटर हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा? 250 इंटू 1, तो दैट इज 250 ग्राम ही हो जाएगा। तो एग्जैक्ट सेम चीज होगी, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं उसी क्वेश्चन में, चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं आप किनारे करके। अगर आपको ml दिया गया है तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये मिटा दूं या लिख रहे हैं आप? Okay, sir. 6. ओके, लिख लो। अच्छा, जिनका हो गया वो ये कर लो क्वेश्चन। इसकी मोलालिटी निकालिए। सर मोलैरिटी। नहीं, मोलालिटी जो निकाल ले वही बेटा, छोटा है। आपको सोल्यूशन दिया गया है, इस बार सॉल्वेंट नहीं दिया गया है। थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। हुआ? Okay.
सर हमारा तो 2 point something आया है। आंसर तो ठीक है, आंसर की बात नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन का मास दिया गया है और सॉल्यूट का मास दिया गया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ 200 सॉल्वेंट विल बी 250 minus 49, so 49. that will be 201 gram, Yes, sir. right? So you have to convert it into kg. Yes, sir. Let's do the question. Molality will be half upon 201 upon 1000. Do the solve. You can solve this one. Okay? 2.49. Yeah. अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था मोलारिटी में, बस एक क्वेश्चन, फिर मैं वापस आता हूँ इस पे। रह गया था, क्वेश्चन लिख लेना है। कैलकुलेट, ये याद रखना होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, सोल्यूशन के साथ। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन रह गया था मोलारिटी का। अगर पीछे जगह हो तो पीछे लिख सकते हैं, यहाँ जगह हो तो यहीं लिख लो। क्या करोगे? भूल गया था मैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर, और कुछ भी नहीं दिया गया आपको। नथिंग हैज बीन गिवन टू यू। डज एनीबॉडी रिमेंबर द वैल्यू ऑफ मोलारिटी ऑफ वाटर? No, sir. We did that earlier, or if you have done somewhere else. What is the molarity of water? Anyone? No, sir. नहीं पता? No, sir. Okay, somebody knows. नहीं बेटा, तू नहीं होती। ठीक है, और कैसे करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव बट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली यूज करना पड़ता है मोलारिटी ऑफ वाटर, या कितने मोल ऑफ वाटर होंगे। तो मोलारिटी ऑफ वाटर जो होती है वो कैसे निकालते हैं? देखो, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो 1 ml वाटर में कितना होगा? 1 ग्राम होगा। तो 1000 ml वाटर में कितना होगा? 1000 gram. 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को अगर मोल में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? और मोलारिटी की डेफिनेशन पढ़िए जरा, क्या होती है मोलारिटी Number की of moles डेफिनेशन of पढ़िए। number of moles of solute solution. तो ये देखो, तो प्रेजेंट इन 1000 ml सोल्यूशन हो गया ना, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, केवल वाटर ही है, तो यही सॉल्वेंट हो गया, यही सोल्यूशन हो गया। तो 1000 ml सोल्यूशन में जो प्रेजेंट होते हैं वो कितने मोल प्रेजेंट होते हैं? 55.55। तो वाटर की मोलारिटी याद रखना बेटा 55.55 होती है। तो ये नंबर ऐसा है कि लोग भूलते नहीं है जनरली। तो वाटर की मोलारिटी 55.55 होती है। ओके, Yes, sir. Yes. नाउ वापस आते हैं, हेडिंग डालना। क्वेश्चन टाइप का है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी छोटा m बराबर होता है 1000 m अपॉन 1000 डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस m इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। मैं चाहूं तो आपको ये फॉर्मूला ना भी कराऊं, मैं डायरेक्ट पूरा समझा सकता हूं, बट अगेन वो टाइम लेता है और बच्चों को मैंने पहले ही पढ़ाया भी था जब फर्स्ट क्लास थी, तो उसमें दिक्कत हो जाती है फिर बच्चों को। तो इट्स बेटर कि आप ये फॉर्मूला याद कर ले, इजिली आप कर लेंगे। तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है 1000 टाइम मोलारिटी, अपर केस m इज द मोलारिटी, अपॉन 1000 टाइम d माइनस m इंटू m ऑफ सोल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। दिस इज मोलारिटी, दिस इज सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट। करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. राइट डाउन। Calculate the molality of
3 molar NaOH solution having density 1.2 gram per ml. तो हाँ, हो गया? तो डेंसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं बेटा, ग्राम पर ml में ही दी है, तो ग्राम पर ml में ही रखनी है आपको। आपकी डेंसिटी हमेशा ग्राम पर ml में होगी इस चैप्टर में। कहो तो लिख लो इन ग्राम पर ml। अच्छा, सबने PYQs तो खरीद लिए है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यस हाँ। टॉपिक वाइज। अगर ना भी अवेलेबल हो तो एक वेबसाइट है, वहां पे आपको चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। एग्जाम साइड करके वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई भी चैप्टर, तो नीट के क्वेश्चन उस पर अटेम्प्ट कर लिया करो। वहां पे एकदम पेपर के फॉर्मेट में होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको अटेम्प्ट करना होता है, फिर आंसर पता चलता है। तो ट्राई कर लिया कर एग्जाम साइड से। Sir, 1000. 1000 आएगा पक्का? Sir, I think so. देखते हैं, इतनी ज्यादा तो नहीं आनी चाहिए बेटा। एक मिनट। देखते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू 3 अपॉन 1000 इंटू 1.2 माइनस 3 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट 40 है, ठीक है। तो ऊपर आ गया 3000। तुम्हारा 1000 कैसे आ रहा था बेटा? मैंने 3 इंटू करना भूल दिया है सर। अच्छा, तब भी नहीं आएगा। 1200 माइनस 120 तो 3000 अपॉन 1080 आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 से कम, सॉरी 2.97 के अप्रोक्सीमेटली आएगा आई थिंक। 1200 में 120 घटाओगे तो 1080 आएगा। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 3000 अपॉन 1080, राइट? Yes. तो ये 2.9 समथिंग आएगा। सर 2.9 या ठीक है। कोई डाउट है किसी को इसमें? बहुत ही No. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है बहुत ज्यादा बेटा। 40 NaOH 40 होता है। NaOH का जो मॉलिकुलर वेट होता है, NaOH लिया था ना, तो 40 होता है ना, 23 प्लस 16 प्लस 1, 16 तो ये 40 हो गया ना। मॉलिकुलर वेट ऑफ NaOH 40 होता है। कई बार कर चुके हैं ये हम, ठीक है। ये क्लियर है? Yes, sir. इसमें और क्वेश्चन तो कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, राइट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक लास्ट टॉपिक बचा है, एकदम लास्ट है, सबसे लास्ट टॉपिक है, कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। सबको पता है वैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि पूरा सोल्यूशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? आपका जो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स होते हैं, बेसिकली सपोज कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ ये ABC। अच्छा, जो लोग नए हैं उन्हें मोल फ्रैक्शन पता है, या मतलब मुझे बेसिक से कराना होगा? बोले बेटा। ओके ओके, बताइए तो सौरभ, मोल नव्या। फ्रैक्शन, कोई नहीं, बोल दिया बता सर उन्होंने, बोल दिया। ठीक है, ठीक। देखिए, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका? मोल फ्रैक्शन होता है कि मान लेते हैं आपके पास कि कितना फ्रैक्शन है। से फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। सबको एवरेज ऑफ फ्रैक्शन निकालना पता है। इसके पास 2 रुपए है, इसके पास 4 रुपए है, इसके पास 5 रुपए है, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मनी डज द ए हैव? तो कैसे निकालते हैं? आपके पास अगर टोटल आपको निकालना है ए के पास कितना परसेंटेज मनी है, या ए के पास क्या फ्रैक्शन में मनी है, तो कैसे करेंगे? मनी इन मनी दैट ए possesses अपॉन टोटल मनी, यस सर। यही तो होगा। जो मनी बी के पास है वो क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस 5। जो सी के पास है वो क्या हो जाएगा परसेंटेज में या फ्रैक्शन में? ये हो जाएगा ना। तो यही बेटा मोल फ्रैक्शन में भी होता है। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है समझिए, कि मान लेते हैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, मैं ए और बी ले रहा हूं ज्यादा, ठीक है। इसके मोल्स एन ए थे, इसके मोल्स एन बी थे, ठीक है।
तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक मिनट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो होगा एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। अच्छा, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस क्या होगा? One. बस ये होता है। तो इस तरीके से लिख लेते हैं। मैं एक्स लिखा हूं, किताब में काई बना होता है, बट ठीक है, लिख लीजिए। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो जो मोल फ्रैक्शन होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी छोटा एम है प्लस मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस बार सॉल्वेंट है बेटा, सोल्यूट नहीं है। ये अकेला फॉर्मूला है जिससे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। ये वाला काम इंपॉर्टेंट है, बट आ जाता है कभी कभी, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ एक, बोले Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. थ्री मोलल CH3COH इन वाटर। तो सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया, ठीक है। कैलकुलेट its mole fraction. Calculate its mole fraction, that is CH3COH, and also the mole fraction of water. And also the mole fraction of water. And also the mole fraction of water. तो याद है ना आपको, अगर दो चीजें हैं केवल, ध्यान दीजिए जरा, आप सॉल्व कर लेना, बट अभी मैं बता रहा हूं थोड़ा। दो चीजें हैं तो केवल दो चीजें हैं, तो इनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा? One. 1. 1 हो जाएगा। तो अगर एक का आप कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरे का केवल 1 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? Yes, sir. करिए, पहले आंसर निकालिए। 3 मोलल दिया गया है तो क्या हो जाएगा? 3. 3 अपॉन 3 plus 1000 divided Upon. by. याद होना चाहिए अब तक तो वाटर का। What's again? वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18. 8. 18. ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूट का निकल आएगा और सॉल्वेंट का निकालने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। आई डोंट थिंक अब आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, ये Yes, चैप्टर sir. आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले इस चैप्टर में, फिर मैं अगला चैप्टर शुरू करता हूँ या फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे। कोई डाउट पूछिए अगर कोई भी हो अभी तक का, आज की क्लास में पूरा कोई भी डाउट हो तो। Sir, Sir, is या सर वो थोड़ा मिक्सिंग वाला थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया था, तो आप फिर से रिपीट कर दोगे एक बार? ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एनी अदर डाउट? कोई और भी कुछ बोल रहा था कोई बच्चा? सर वो इस चैप्टर का ना वो सभी वो एक टाइप का फ्लो चार्ट हमको मिल सकता है। कौन सा, क्या बोल रहे हैं? इस पूरे चैप्टर का वो थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप। फ्लो चार्ट तो नहीं मिलेगा। ओके, मैं देखता हूँ, मैं बना के भेज दूंगा। ओके, या अभी बना दें क्या फ्लो चार्ट? सर बाद में हाँ। भेज दीजिए। ओके, देखिए, एनी अदर डाउट? मिक्सिंग में बेटा हम क्या करते हैं कि व्हेन यू मिक्स समथिंग, फॉर एग्जांपल अगर इसकी मोलैरिटी, मैं फॉर्मूला बना देता हूँ आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। व्हेन यू आर मिक्सिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, ये M1 है, V1 है, इसका आपका
M2 है, V2 है। तो व्हेन यू मिक्स देम टुगेदर, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दे शुड नॉट बी रिएक्टिंग। ठीक है, आई डोंट टेल द फॉर्मूला बिकॉज जैसा अभी हमने क्वेश्चन किए, फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, समटाइम यू हैव टू टिकर आउट कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर। तो यहाँ पे जो नया बन जाता है वो क्या हो जाता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन। तो जैसे हमने क्वेश्चन किया था, ध्यान दीजिए, 3 मोलर 100 ml HCl प्लस 2 मोलर 100 ml H3PO4 ले लेते हैं। ठीक है, तो बताइए बेटा, बताइए आप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, जी आपने ही पूछा है ना, तो इसके मिलीमोल कितने होंगे बताइए जरा। हाउ मेनी मिलीमोल्स विल बी देयर? 300. 300, and this is the millimoles of HCl. So how many H plus does the HCl donate? Yes, sir. How many H plus does the HCl give? 300. HCl कितने H plus देता है? 300. 1 देता है, मतलब तो 300 देंगे, तो H plus यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 300। ओके, यहाँ पे आते हैं, what is the millimoles? 200। Yes, sir. ओके, तो H3PO4 कितने H plus देता है? 3. 3 देता है, तो 200 कितने देंगे? 600. 600. 600. So how many total H plus have here become? How many H plus are there in total? 900. 900. 900. And when you mix them together, what is the total volume? 200. 200. So what is the molarity? Formula of molarity, number of mole upon volume in liter. But दोनों ml में है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। Four point five. 4.5. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Now अब मैंने ये सब क्यों पढ़ा है आपको? आपको याद है pH का फॉर्मूला क्या होता था? जिसमें Yes, sir. आगे पढ़ा देना, 2 मिनट बच्चे अभी बता देता हूँ। pH का फॉर्मूला क्या होता था? नहीं. pH का फॉर्मूला बेटा 11th में किया होगा ना? नहीं याद है? No, H. sir. KHS. ये फॉर्मूला याद नहीं? कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे, मैंने तो पढ़ाया नहीं है। ये फॉर्मूला याद है? हाँ, sir. sir. तो ये जो होता था, ये क्या होता था? H प्लस का कंसंट्रेशन ही तो होता था। तो अब जैसे ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन किया है, वहां पे क्या लिख दोगे आप? ऑल्दो अच्छा क्वेश्चन नहीं है वो, लॉग नेगेटिव नहीं हो सकता, Okay. वो मैंने क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, बट यू गेट द पॉइंट हाउ टू सॉल्व इट, राइट? सो यू Yes, कैलकुलेट sir. द H प्लस एंड यू पुट द वैल्यूज देयर, दैट्स इट, यू हैव टू डू। Okay, sir. इसलिए मैंने वो टॉपिक पढ़ाया आपको, क्योंकि जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा उसमें पीएच आता था, तो उस पीएच में H प्लस निकालते थे आप। कोई और डाउट है? No, No, sir. No, sir. ठीक है,